Let us continue with solving sums. This is for the first time that we are going to use forward contract or futures contract for covering up the risk as far as the foreign currency is concerned. One thing which we have already done has been to take a forward rate cover. So there was a spot rate and the other one was a forward rate. In this example, we are hedging ourselves. We all know the word hedge, that is minimizing risk. Technical words में it is also called as mitigation of risk. So hedging is minimization of risk, that is mitigation of risk. So how are we going to use these two contracts? One contract has been given in futures contract, October ending, $1 is equal to 68.68 rupees. And then there has been a forward contract. Please note the difference between the two. The first one is futures contract, which is easily available on the stock market. Futures contracts are available on the stock market. Whereas forward contract is between two individual parties. So it's not going to be on the exchange. So it is more what you say regulated one as compared to this forward contract. We have already studied derivatives separately. So from there we can take a clue as to the difference between the forward and futures. Now same commodity, how do we plug ourselves, or how do we manage to reduce our risk by doing this? Let's see this. As soon as there are two different contracts available in two different markets, what you can always do, arbitrage is buying at a lower price and selling at a higher price. So what we can easily do here is, you can sell at 68.90 and you will be able to buy it at 68.68. That means the difference between the two is 22 paisa. So you have already got the profit. As soon as you, today I say, you enter into these two transactions, I will say sell forward at 68.90 minus, we will go long, that is buy futures. Both have the same expiry. So as soon as I have entered into these two transactions, the difference is my gain. Straight away. This gain will be utilized to offset the losses, if any, if you are paying more. Suppose you are an importer. How do we use this actually? When you are an importer, you are going to make the payment abroad of the foreign currency. So you will be making some payment to foreign currency. Probably because of Indian rupee appreciation, if you have to shell out more of Indian rupees for buying the same foreign currency units, then this gain will be useful for you to reduce the risk. That's what we are looking at over here. So we have already done this transaction today and we have already gained 22 paisa. We have utilized two different markets for getting the benefit, getting the 22 paisa gain. So we have done the first part of the question. How can you take advantage? I have mentioned sell forwards and buy futures, and that way you will be able to benefit yourself. Second part, suppose actual rates at the expiry are either 69 or 68. Then what happens? And expiry means maturity. Suppose the rate is 69. So on the first transaction, if the rate is 69, you will earn a profit between 69 and 68.68, that is of 32 paisa. That will be the profit on this transaction, because you have already bought.
buy will be squared off with sell. So you have bought something at 68.68 which you are selling at 69. Thereby you are earning profit. Simultaneously, whatever you had sold at 68.90, that you will have to buy at 69. Therefore there is a loss. This is sell and this is buy. Whatever you have sold at 68.90, I repeat myself, square off. What are we doing? We are squaring off the transactions. We are going to square off both these transactions. So here we have incurred a loss of 10 paisa. In nutshell, we have maintained the profit of 20. Next, suppose at maturity the price falls down to 68. Then what happens? Here you will incur a loss. 68 minus 68.68. So there will be a loss of 68 paisa, and then there will be a gain. Whatever you had sold at 68.90 minus 68, there will be a gain of 90. Again, our gain has been stationed at 22 paisa. So that is what hedging is all about. From 68.60 or 68.90, even if the market price goes up to 69 or it goes down to 68, even if it goes up to 69 or it goes down to 68, our profit remains same. This is called an insurance cover. Anything happens in the market, ultimately we are settled with a gain of 22. That is what is called as hedging. Hedging क्या करेंगे, कैसे करेंगे hedging? We will buy in one market, sell in the other. This way or that way, ultimately our gain is insulated. Our risk is minimized. That is what is hedging of. Okay? Okay. Now this is one of the sums which provides us three different ways of hedging. तो हम लोग तीनों वन बाय वन देखेंगे. पहले सब के कंटेंट समझ लेते हैं. CS प्रोफेशनल के 2009 दिसंबर 2B में आया था. सिर्फ 6 मार्क्स के लिए आया था, तो थोड़ा सा स्टूडेंट को लगेगा सरासर नाइंसाफी है. सिर्फ 6 मार्क्स के लिए इतना सारा कैलकुलेशन. उन्होंने 2 मार्क के लिए एक ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाय 3 किया था. आई वुड हैव गिवन मिनिमम 8 मार्क्स. एनीवेज, इट इज नॉट माय प्रेरोगेटिव नाउ. लेकिन 8 से 10 मार्क के लिए ऐसे वाला सम आ सकता है. लेट अस सी क्या कंटेंट्स है. दिस इज फॉर जनवरी. अ फर्म हैज टू पे $7,29,794 in 6 months. लंदन का ऑफिस दिया है. That indicates to us that the domestic currency is in pounds and not dollars. So foreign currency is US dollars and domestic currency is pounds. Then exchange rates have been given. Today's spot rate has been given so and so dollars for 1 pound, 1.5617 and 1.5773. This is buying rate and selling rate of 1 pound. Please note that. Then 6 months forward rate has also been given. Money market rates are given. Money market hedge का मतलब एकदम सिंपल है. एक मार्केट पे बोरो करेंगे और दूसरे में हम लोग डिपॉजिट मतलब इन्वेस्ट करेंगे. तो हम लोगों ने पहले ही कहा है कि बोरोइंग उस जगह पे होना चाहिए जो डेप्रिशिएटिंग करेंसी है. अगर आप ये दो कोड्स देखेंगे, इफ यू सी दीज टू कोड्स, ऑब्जर्व देम केयरफुली. स्पॉट रेट है 1.56 and 1.57 and 6 months forward rate is 1.54 and 56. What does that indicate to you? That is indicative of the fact that US dollar is appreciating and pound is depreciating.
क्या अप्रिशिएट हो रहा है? यूएस डॉलर। कैन यू सी द रेट? 1.56, 1.54, 1.57, 1.56। मतलब कम डॉलर्स दे के हमको 1 पाउंड मिलेगा। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है that these are per pound rates that we should not forget। आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट रेट, मैं आपको मनी मार्केट की वजह से बता रहा था ये आप बोरो करेंगे, कहाँ बोरो करेंगे आप? डेप्रिशिएटिंग करेंसी में। डेप्रिशिएटिंग करेंसी मतलब पाउंड है, पाउंड में आपने बोरो कर लिया और इन्वेस्ट कहाँ किया? यूएस डॉलर में। देन करेंसी ऑप्शन सेंट्स पर pound are given, contract size is 12,500 pounds, exercise price is $1.70 per pound, call option is available at 3.7 cents and put option is available at 9.6। करेंसी ऑप्शन हम तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहला वे ऑफ हेजिंग इज फॉरवर्ड एक्सचेंज, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो यही है। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मतलब हम लोगों को 6 महीने के बाद का रेट लेने का। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी हम दोनों में से कौन सा रेट लेंगे इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज आर सो एंड सो डॉलर्स पर पाउंड। पर पाउंड मतलब 1 पाउंड के लिए रेट्स। अगर किसी को समझेगा नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखा है, टुवर्ड्स द एंड है। इसका मतलब स्टूडेंट को अभी तक ये आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए इन दोनों में से कौन सा रेट लेना है। ये हम लोगों ने पहले अनेक बार कर लिया है। एनीवेज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट सो दैट द डिस्कशन इज कंप्लीट। कस्टमर हैज पाउंड्स, लंदन ऑफिस है, मैंने आपको कहा था डोमेस्टिक करेंसी हम लोग समझ लेंगे, पाउंड्स है। सो ही विल सेल पाउंड्स टू ऑथराइज्ड डीलर, देयरफॉर ऑथराइज्ड डीलर विल बाय पाउंड्स एंड सेल व्हाट? सेल डॉलर्स। ये क्लियर लाइन हो गया। एज सून एज इस लाइन पे अराइव हो गया, ऑथराइज्ड डीलर विल बाय पाउंड्स एंड सेल डॉलर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कोटेशन क्या चीज का दिया है? कोटेशन इज गिवन पर पाउंड। ये कोटेशन दिया है 1 पाउंड के लिए। देयरफॉर अभी 6 महीने के बाद का रेट सिलेक्ट करना है, ये तो पक्का हो गया। ऑथराइज्ड डीलर क्या करेगा? ही विल बाय द पाउंड। इफ ही इज बाइंग द पाउंड, ही विल ऑलवेज बाय एट द लोअर ऑफ द टू रेट्स 1.545 है। इसके लिए फिर हम लोगों ने ये रेट ले लिया, ये देखो यहाँ पे 1.5455 डॉलर्स इज इक्वल टू 1 पाउंड। सो आज के तारीख में कितने पाउंड्स है? 6 महीने के बाद कितना पेमेंट देना है? इट हैज ऑलरेडी बीन मेड क्लियर, 729 794। तो 792 729 794 डॉलर्स के लिए कितना पाउंड्स हम लोगों को सेल करना पड़ेगा? आंसर टू दैट इज 472,206। दूसरे और तीसरे ऑप्शन में इसका कंपैरिजन लास्ट आंसर के साथ दूसरे और तीसरे ऑप्शन का करेंगे। जो आपका कम से कम होगा दैट आंसर विल बी सिलेक्टेड। आपके कम से कम पाउंड्स जाने चाहिए, दैट्स द लॉजिक। तो ये 6 महीने के बाद आपके इतने पाउंड्स गए, ये आपको समझना है। नाउ वी गो टू द सेकंड। सेकंड में इसको कहते हैं हम लोग मनी मार्केट हेज। और यहां पे रूल क्या है? थंब रूल क्या है? इन्वेस्ट इन अप्रिशिएटिंग करेंसी एंड बोरो इन depreciating currency। इन्वेस्ट इन अप्रिशिएटिंग करेंसी, बोरो इन depreciating currency। अभी हम लोगों को देखना है, जो मैं अभी प्रॉब्लम डिस्कस करते समय आपसे बात कर रहा था, 1.56 has become 1.54, 1.57 has become 1.56। That means you are paying lesser dollars per pound। आज से 6 महीने के बाद अगर लेसर डॉलर्स पर पाउंड है, इसका मतलब ही ये है कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है और पाउंड डिप्रिशिएट हो रहा है। इन्वेस्ट इन अप्रिशिएटिंग करेंसी दैट इज डॉलर एंड बोरो इन डिप्रिशिएटिंग करेंसी दैट इज पाउंड। ये हम लोगों ने यहाँ पे नक्की किया। अभी देखते हैं 6 महीने बाद। प्लीज रिमेंबर
ये जो डॉलर्स हमको चाहिए वो 6 महीने के बाद चाहिए, तो अमाउंट रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ्स इज 729,794। उधर का डिपॉजिट रेट क्या है, उधर का मतलब यूएस डॉलर का, हमारा डोमेस्टिक करेंसी पाउंड है, ये सोच के उधर का कहा, उधर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5%। 4.5% इज फॉर 12 मंथ्स, सो फॉर 6 मंथ्स इट इज गोइंग टू बी 2.25%। फिर अपना सिंपल अरिथमेटिक का जो बचपन से अपने चला आ रहा है वो फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की सम ऑन मैच्योरिटी। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट 2.25 है और सम ऑन मैच्योरिटी इज 102.25। और आप सबको मालूम है 6 महीने के बाद मुझे ये अमाउंट चाहिए 729,794। तो आज के तारीख में मुझे कितने डॉलर्स चाहिए, 729,794 डिवाइडेड बाय 102.25 into 100 will give you this amount of 735। तो 713,735 इतना अमाउंट आपका डॉलर्स में आ गया आज के तारीख में। आज के तारीख में मतलब कन्वर्ट एट स्पॉट, जैसे ऊपर हम लोगों ने कन्वर्ट इस रेट से किया, अभी आज अगर मुझे डॉलर्स चाहिए और आज अगर मुझे पाउंड बेचने हैं तो इसके जगह पे हम लोग ये रेट लेंगे। सो कन्वर्ट एट स्पॉट दैट इज एट 1.5617 डॉलर्स फॉर 1 पाउंड। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया, 1.5617 डॉलर इज इक्वल टू 1 पाउंड, सो दीज मेनी डॉलर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आया 457,024 पाउंड्स। अभी ये अमाउंट आपको बोरो करनी है, कहां पे बोरो करनी है, डिप्रिशिएटिंग करेंसी हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया है, दैट इज पाउंड। उसका रेट क्या है 7%, तो 6 महीने के लिए रेट क्या होगा 3.5%। तो अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 6 मंथ्स, आज के तारीख में मैं इतना रेट इतना इंटरेस्ट पे ले लूंगा, दिस मच ऑफ द अमाउंट आई विल हैव टू बोरो टुडे इन टर्म्स ऑफ पाउंड 457,024, और 6 महीने के बाद मुझे उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट पे करना है 3.5%, 100 प्लस 3.5, तो 3.5% इज 15,996। तो दूसरे ऑप्शन के एंड में हमारा आंसर आ गया पाउंड्स में 4,73,020। पहला ऑप्शन आपको याद है 472 आया था और ये 473 आया, मतलब दिस ऑप्शन इज बेटर देन द सेकंड ऑप्शन। हाउएवर वी हैव टू थिंक अबाउट द ऑप्शंस आल्सो, कि ऑप्शंस में पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन लेके क्या हम लोग अपना रिस्क कवर कर सकते हैं, और क्या हम लोग हमारा ये जो आंसर है इन सिंपल टर्म्स अरिथमेटिकल टर्म्स 472 और 473 है तो 472 ले लिया, तो क्या ये 472 का 470 या उससे भी कम हो सकता है क्या, दैट इज व्हाट इज अवर नेक्स्ट, दैट इज द फाइनल डिसीजन टू बी मेड। तो तीसरा ऑप्शन है, हेजिंग के 3 तरीके बताए हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये सम जो है वो बहुत डिटेल्ड है। तो पहला फॉरवर्ड एक्सचेंज जो नॉर्मली 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, दूसरा मनी मार्केट है ये भी 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, और एक ऐड करके इतना सारा कैलकुलेशन, लेकिन तीनों मिला के अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट हैज अवॉर्डेड ओनली मैक्सिमम 6 मार्क्स। एनीवेज मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आसान है या नहीं इज अ सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली है। तो इतने सारे समय के लिए इतना कम मार्क्स थोड़ा सा जस्टिफाइबल रेशो में नहीं बैठता। एनीवेज दैट इज नॉट अवर कॉल, वी विल गो अहेड और मैं आपको इमीडिएटली करेंसी ऑप्शंस में क्या सिचुएशन होगा वो दिखाऊंगा। ये दोनों आंसर्स में बोर्ड पे जैसे है वैसे ही रखूंगा, 472 और 473 उसके साथ कंपेयर करके, देन वी विल टेक द फाइनल कॉल एज टू तीनों में से कौन सा मीन्स से हम लोगों को हेजिंग करना है। ओके, नाउ द थर्ड ऑप्शन इज करेंसी ऑप्शंस। प्लीज बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करते समय थोड़ी गलतियां होती हैं, इसके लिए सेंट्स पर पाउंड है, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज गिवन एज 12,500 पाउंड्स, एक्सरसाइज प्राइस इज $1.70 per pound, कॉल ऑप्शन इज एबल टू बी परचेस्ड एट 3.7 cents and put option is able to be purchased at 9.6 cents। तो जैसा डॉलर है, डॉलर के साथ सेंट आता है, ये आपको पता है।
100 cents is equal to $1. तो ये करेंसी ऑप्शन का थर्ड वे ऑफ हेजिंग ये देख लेते हैं। यही सारा इंफॉर्मेशन यूज करेंगे अभी हम लोग। एक्सरसाइज प्राइस दिया है उन्होंने $1.70 पर पाउंड। एक्सरसाइज प्राइस इज $1.70 पर पाउंड, उधर से लिख लिया। एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज भी दिया है 12,500 का, 12,500 पाउंड्स दिए हैं। देयरफॉर एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना डॉलर्स होगा? दीज आर डॉलर्स पर कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में $21,250 का सौदा होगा। कस्टमर क्या करेगा? विजुअलाइज करो, वो पाउंड्स बेचने का ऑप्शन ले रहा है। बेचने का मतलब ही इज बाइंग पुट्स, तो ये पुट ऑप्शंस परचेस कर रहा है और ये पुट ऑप्शन परचेस करने के लिए उसका खर्चा है। This is what is the cost of buying one option, 9.6 cents per pound. तो 12,500 पाउंड्स मतलब $21,250। $21,250 को क्यों कन्वर्ट कर ले इनको डॉलर्स में? क्योंकि हमको अल्टीमेटली चाहिए डॉलर्स ही। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर रिक्वायर्ड इज 729, 794। एक कॉन्ट्रैक्ट में इतने डॉलर्स होंगे, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए 35। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, राउंडेड ऑफ है। ये इसका आंसर 34.34 आता है, बट वी हैव राउंडेड इट ऑफ ऑन अ हायर सेट टू 35। तो अपने कैलकुलेशंस थोड़े से कम होंगे, दैट इज द रीजन। मतलब हम लोगों ने पूरा हेज कर लिया, फुल्ली हेज। अभी इसमें से पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, जैसे मैं आपको बता रहा था, व्हेन यू विल सेल pounds you will buy dollars. Unless you sell pounds, how can you buy dollars? इसके लिए selling selling का ऑप्शन मतलब put ऑप्शन। We have to sell pounds and buy dollars, that is we use put ऑप्शन। तो 35 कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, ये तो पता चला। एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, उन्होंने कहा है पुट है 0.096। जैसे अपने यहाँ पे रुपीज और पैसा है, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपये, वैसा ही है 9.6 सेंट्स, मतलब डॉलर टर्म में 0.096। अपने यहाँ पे अगर 90 पैसा होता तो 0.90 लिखते थे, वैसे ही है। यहाँ पे 9 पैसा लिखना है तो 0.09 लिखा। सो 0.096 डॉलर्स पर, याद है ना, पर पाउंड है। 35 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया। एक कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ पाउंड्स कितने एक्सचेंज होने वाले हैं? 12,500। और एक पाउंड के पीछे इतना इतना हमारा खर्चा है। दिस इज लाइक अ ब्रोकरेज और कमीशन। ये खर्चा करेंगे तो हमको पुट ऑप्शंस परचेस करने मिलेंगे। तो ये आंसर अगर आप ध्यान देंगे, दीज आर पाउंड्स पर कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सी लिखता हूँ यहाँ पे, contract gets cancelled, pound gets cancelled, 0.096 into 12,500 into 35। ये अगर कैलकुलेशन पूरा हो गया, पाउंड्स गेट कैंसल्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स गेट कैंसल्ड, ये आंसर आपका आ गया डॉलर्स। तो ये डॉलर्स में आया 30,187.5। लेकिन हमको तो आंसर चाहिए पाउंड में। अगर आपको याद है तो द अर्लियर टू आंसर्स वर इन पाउंड्स। तो इसके लिए आज का रेट जो है 1.5617, तो आज के रेट से इसको कन्वर्ट कर लिया हमने पाउंड्स में, और उसका आंसर आ गया 19,330, 19,330 पाउंड्स। और 12,500 के 35 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये 4 पेन 437,500, ये भी देना है आपको। सो दीज पाउंड्स पुट ऑप्शन के लिए और ये ऑप्शन खरीदी करने के लिए, ऐसा करके हमारा टोटल खर्चा हो गया 456,830 पाउंड्स। सो 456,830 इधर लिख लिया। तीनों ऑप्शंस का आंसर हमारे सामने है। फॉरवर्ड रेट पे 472,
मनी मार्केट रेंज में 473 और करेंसी ऑप्शंस में 456. So we have to select whichever is the least. Therefore करेंसी ऑप्शन यूज करना हमारे लिए सबसे बढ़िया साबित हुआ. So we will select this particular option. Okay.